Hello student, I hope you are well and doing well. Today in this lecture we will discuss the basic concept of circles so that we can easily understand the chapter circles and area related to circle. So the first question arises in our mind, what is circle? What is circle? So a circle is a round shape figure that has no corners or edges. मीन इन हिंदी वी कैन से सर्कल ऐसा एक राउंड फिगर है, शेप है जिसकी ना कोई कॉर्नर पॉइंट है ना एज है। इसी चीज को दूसरे वर्ड में कैसे हम एक्सप्लेन कर सकते हैं? ए सर्कल रेफर टू ए पाथ ऑफ ए पॉइंट विच मूव इन ए प्लेन इन सच ए वे दैट इट रिमेन एट ए कांस्टेंट डिस्टेंस फ्रॉम ए फिक्स्ड पॉइंट इन ए प्लेन। इट मीन सर्कल refer to a path of a point. Same here, B is a point and its path at a constant distance from A is create a path at a constant distance when we have rotated. Suppose we have a thread whose length A to B and we have rotated in this way, it will create a figure. This one is called the circle. So the fixed point is called center and the distance, fixed distance, is called radius. So center of a circle, as we already discussed, the fixed point. In this case P and in this case A are fixed points. In this figure, this one A is fixed point and A to B distance is fixed distance. This fixed distance is called radius. यानी कहने का मतलब ये है, जो फिक्स्ड पॉइंट आपको दिखाई दे रहा है इसको हम सेंटर बोलते हैं इस वाले उसमें सर्कल में। और जो सेकंड वाला सर्कल है जो कि आप ये देख रहे हैं, इसमें P जो है वो आपका क्या है, फिक्स्ड पॉइंट है और इसको हम क्या बोलते हैं, सेंटर ऑफ ए सर्कल। नाउ नेक्स्ट, सो दिस सर्कल डिवाइड ए प्लेन इनटू थ्री पार्ट्स। वन इज एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल, another is interior of a circle and on the circle. So the points which have distance less than radius from the center is called interior of a circle. Suppose the point Q and R have length less than radius, so these are called interior points. And in exterior the distance of T, distance of S is more than radius, so these are exterior points. And the distance of V and U equal to R, this is called the point on a सर्कल। यानी कि यहाँ पर अगर किसी पॉइंट का डिस्टेंस सेंटर से नज़दीक रेडियस से कम है तो इसका मतलब वो इंटीरियर ऑफ सर्कल है, और अगर उसका डिस्टेंस सेंटर से रेडियस से ज़्यादा हो जाए तो एक्सटीरियर है, यानी उससे सर्कल से बाहर है। और यहाँ पर जो दो पॉइंट हैं जो सर्कल के ऊपर आ रहे हैं, उस केस में जो डिस्टेंस है इन दोनों पॉइंट्स का वो रेडियस के इक्वल है, तो इस तरह के पॉइंट को कहेंगे ऑन दिस सर्कल। नेक्स्ट बात करते हैं सेमी सर्कल। सेमी का मतलब क्या होता है, हाफ। द सर्कल, द सेमी मीन हाफ, सो सेमी सर्कल इज हाफ ऑफ ए सर्कल। इट फॉर्म्ड बाय कटिंग द होल सर्कल अलोंग ए लाइन सेगमेंट पासिंग थ्रू द सेंटर ऑफ सर्कल। द लाइन सेगमेंट इज कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। सो सेमी सर्कल क्या है कि सर्कल का जो हाफ होता है उसे हम सेमी सर्कल कहते हैं। जैसे कि इस फिगर में आप देख सकते हैं, ये पिंक कलर वाला रीजन और ये व्हाइट वाला रीजन सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहा है, और जो लाइन सेगमेंट इसको डिवाइड कर रहा है इक्वल पार्ट्स में, उसको हम बोलते हैं डायमीटर। बट ये पॉसिबल तभी होता है जब ये सेंटर में से पास करे, तो दिस इज कॉल्ड हाफ सर्कल और सेमी सर्कल। सो इट मीन we can divide a circle into two semicircles, यानी कि एक सर्कल को हम दो बराबर सर्कल्स में डिवाइड कर सकते हैं, जिसको कि हम बोलते हैं सेमी सर्कल या हाफ सर्कल। नेक्स्ट बात आती है क्वार्टर सर्कल। सो क्वार्टर सर्कल मीन 1/4। इफ एनीथिंग हैव क्वार्टर इट मीन 1/4 of anything. So same, if 1/4 of a circle is called quarter circle. So in this figure, this portion is called 1/4. This one is also 1/4. This one is also this one. So 1/4, 4 time became complete circle. So quarter, this shaded portion is quarter, and this dotted portion different is also quarter. So 4 quarter in a circle. It means there are 4 quarter in a complete circle. It means in semicircle there are 2 quarter.
and in circle there are 4 quarters. Next, parts of circles. So radius, as we already discussed, what is radius? Radius is a fixed distance around which fixed distance, suppose this one is center and this one is any point, so this fixed distance from here to this one is called radius, fixed distance. And diameter, the line segment passes through the center, the line segment passes through the center of a circle having its end point on a circle is called diameter. जिसके end point circle पे हो, इस तरह के line segment को हम diameter बोलते हैं। और ये क्या होता है, इसका डबल होता है रेडियस का, यहाँ से यहाँ तक एक रेडियस और यहाँ से यहाँ एक रेडियस, सो दिस इज कॉल्ड द डायमीटर। इट मीन 2 टाइम रेडियस इज इक्वल टू 1 डायमीटर, और यू कैन से दैट half of diameter is radius. Now circumference. So circumference of a circle is distance around a circle. Suppose आपको ये एक राउंड ग्राउंड है, मतलब सर्कुलर ग्राउंड है, और आप इसके आसपास चक्कर काटेंगे तो जो डिस्टेंस बनेगा इसको हम सर्कमफ्रेंस बोलते हैं। एंड इन अदर शेप दिस इज कॉल्ड पेरीमीटर। और अगर जो दूसरे फिगर होंगे, जैसे आपके पास रेक्टेंगल है, स्क्वायर है, उस केस में इसी सर्कमफ्रेंस को या पेरीमीटर कहा जाता है उनके केस में। सो chord of a circle. Next one is chord of a circle. A line segment with its end point lying on a circle is called chord of a circle. So this figure, this one is chord, this one is chord, these are chord. So chord ऐसी एक line segment है जिसके दोनों end point circle को touch करते हैं, ठीक है। और इसमें जो diameter है वो सबसे बड़ा largest chord किसी भी circle का होता है। Next one, arc of a circle. So it is a curve that is a part of a circumference. An arc that connect the end point of a diameter is called semicircle. So arc, as you can see in this figure, this is arc. जो ये आप फिगर देख रहे हैं ये एक आर्क है, और आर्क जरूरी नहीं है कि किसी सर्कल का हो ना, ये किसी पैराबोला, इलिप्स, इस तरह की फिगर का भी हो सकता है। बट वी आर डिस्कसिंग हियर द सर्कल, दैट्स व्हाई वी आर यूजिंग आर्क of a circle. So end point, this one is an arc connect the end point diameter is called semicircle. इस तरह का जो आर्क डायमीटर को कनेक्ट करते, जो डायमीटर के कनेक्ट करते हुए बनता है उसको हम सेमीसर्कल बोलते हैं। An arc divide the circle into 2 parts. So any arc can divide, you can see in this figure the major arc and minor arc. The arc divide it into 2 parts. One is called minor arc. When the length of arc is smaller, is called minor arc. As we know in English, minor mean small. And same in this case, the major arc, जैसे कि आप देख सकते हैं कि major mean बड़ा होता है, so length, when length of the arc is larger is called major arc. So measure of arc is written as m and sign indicated by this one. So जैसे कि आप इस फिगर में देख सकते हैं मेजर m और ABC, यानी कि ये मेजर बता रहा है, इसकी लेंथ बता रहा है, और ये 2 आर्क का सम है। एक आर्क कौन सा वाला है, ब्लू वाला, A से B आर्क, मेजर ऑफ AB एंड मेजर ऑफ BC मीन पिंक लेंथ। These two combined give us the arc AC, यानी कि ये दोनों आर्क मिलकर जो मेजर बनाते हैं वो AC का बनाते हैं, ठीक है। सो आपको आई होप समझ में आ गया कि आर्क क्या है, एक सर्कमफ्रेंस का छोटा सा पार्ट जिसको हम आर्क बोलते हैं। इस फिगर में आप देख सकते हैं। नेक्स्ट, सो ए स्ट्रेट लाइन एंड ए सर्कल कैन कोएग्जिस्ट इन 3 ways. One can be straight line with no intersection to the circumference of a circle, and 3 always exist, there always exist between the circle and line. The second type is when the line lies in such a way that its passes touch the circumference of a circle known as tangent of circle. The third type is the line intersect the circumference at 2 places and it known as secant. So ये क्या कहना चाहता है उसको समझते हैं कि जो टेंजेंट और जो सर्कल है, सॉरी जो लाइन है और जो सर्कल है, उनके बीच में 3 तरह के रिलेशन बन सकते हैं। एक सर्कल और एक आपको लाइन दी जाए स्ट्रेट लाइन, तो आप 3 तरह के रिलेशन बना सकते हैं। एक ये वाला, जब ये सर्कल को एक पॉइंट पे टच करे तो इसको हम टेंजेंट बोलते हैं। और दूसरा केस सीकेंट है,
जब जो लाइन है और जो सर्कल है वो 2 पॉइंट पे टच करते हैं। और एक तीसरा जो केस है वो नो इंटरसेक्शन, यानी दोनों के बीच में एक गैप रहेगा। तो इस तरह के 3 केसेस बनाए जा सकते हैं जब एक लाइन को लिया जाए और एक सर्कल को लिया जाए। तो लाइन और सर्कल के बीच में 3 तरह के रिलेशन है, टेंजेंट का रिलेशन, सेकेंड का रिलेशन एंड नो इंटरसेक्शन। सो टेंजेंट तब होगा जब ये एक पॉइंट पे टच करेगा, और सेकेंड तब होगा जब लाइन क्या करेगा, 2 पॉइंट्स पे टच करेगा। ठीक है, और ये लाइन सेगमेंट नहीं है, ये लाइन है, इस चीज को आप समझेंगे। दिस वन इज लाइन नॉट लाइन सेगमेंट। सो सेकेंड दिस टच एट 2 पॉइंट्स एंड नो इंटरसेक्शन। ठीक है, सो 3 टाइप के केसेस हैं। नेक्स्ट सेकेंड ऑफ ए सर्कल, जैसे कि हम डिस्कस कर चुके हैं, ए सेकेंड इज ए लाइन दैट इंटरसेक्ट ए सर्कल एट एग्जैक्टली 2 पॉइंट्स। तो सेकेंड हम ऐसे लाइन को बोलते हैं जो कि सर्कल को 2 पॉइंट्स पे टच करता है। जैसे कि आप इसमें देख सकते हैं Q और R पे सर्कल को टच किया जा रहा है, और यहाँ पे जो सर्कल का सेंटर है वो P दिया गया है। सो जब 2 पॉइंट्स पे कोई लाइन टच करे तो उसको हम क्या बोलेंगे, सेकेंड बोलेंगे। Next, tangent of a circle. So tangent of circle, as we already discussed, the tangent is a straight line which touch at only one point to a circle. So a tangent is a line that intersect a circle at exactly one point. There is only one tangent at a point of a circle. The tangent to a circle is a special case of secant when the 2 points of its corresponding chord coincide. So टेंजेंट एक स्ट्रेट लाइन है जो कि पॉइंट पे टच करता है, सिर्फ एक पॉइंट पे। और दूसरी चीज, एक पॉइंट पे एक ही टेंजेंट बन सकता है, यानी कि P पॉइंट जो आपको इस फिगर में दिख रहा है, यहाँ पे 2 टेंजेंट नहीं बनाए जा सकते, सिर्फ एक टेंजेंट बनेगा। सो द टेंजेंट ऑफ ए सर्कल इज स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। तो आपने इससे पहले देखा था कि सीकेंट का ही ये स्पेशल केस है। कैसे? अगर आप इस टेंजेंट को धीरे धीरे बाहर की तरफ मूव कराते जाएं, ऐसे बाहर को मूव कराते जाएं, तो एक टाइम ऐसे आएगा ये Q और P पॉइंट क्लोज होते हुए एक ही पॉइंट बन जाएंगे। तो इसीलिए जो टेंजेंट है उसको हम कहते हैं स्पेशल केस ऑफ सीकेंट, बिकॉज अगर आप इसको बाहर को शिफ्ट करते हुए लेके जाएंगे तो ये क्या बन जाएगा, टेंजेंट बन जाएगा, जहां पे Q और P पॉइंट दोनों एक दूसरे के ऊपर कंसाइड कर जाएंगे। एंड यू कैन से दिस ओवरलैप। ए सर्कल हैज इनफाइनाइट मैनी पॉसिबल टेंजेंट्स। सो एक सर्कल के पास कितने टेंजेंट हो सकते हैं? तो एक सर्कल के पास इनफाइनाइट टेंजेंट हो सकते हैं। इनफाइनाइट टेंजेंट होने का रीजन है कि सर्कल के पास इनफाइनाइट पॉइंट है। अगर इनफाइनाइट पॉइंट है तो इनफाइनाइट टेंजेंट बनाए जा सकते हैं। द कॉमन पॉइंट ऑफ ए टेंजेंट एट ए सर्कल इज कॉल्ड पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इसका कहने का मतलब यह है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट हम किस चीज को कहते हैं? तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, जैसे कि आप यहाँ पे देख रहे हैं कि जहां पे टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं उसको हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। जैसे कि इस फिगर में जो P है वो आपका क्या है, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। किसके बीच में? एक टेंजेंट और सर्कल के बीच में। तो इसीलिए यहाँ पे अगर कोई पूछे कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है तो आप कहेंगे P है, क्योंकि P जो पॉइंट है जहां पर टेंजेंट और सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं। नेक्स्ट, नंबर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम ए पॉइंट टू ए सर्कल। अब हम इस बात को समझेंगे कि टेंजेंट कितने तरीके से बनाए जा सकते हैं डिफरेंट पॉइंट से। सो जैसे कि पहले जो फिगर हम देख रहे हैं कि इसमें हमारा जो पॉइंट है वो इंटीरियर ऑफ ए सर्कल है, यानी कि जब हम इंटीरियर कोई पॉइंट लेते हैं और वहां से कोई टेंजेंट बनाना चाहते हैं तो कोई भी टेंजेंट पॉसिबल नहीं है। तो नो टेंजेंट इन दिस केस। कब? when there is a point inside the circle, so there is not possible to draw a tangent from interior of a circle and on the circle. So second case is on the circle. अगर कोई point on the circle है और वहां से आप टेंजेंट बनाना है, then there is only one possibility, so only one tangent you can draw. And when point is outside the circle, so in the third case this point, suppose this is P point, so इस P point से आप 2 टेंजेंट बना सकते हैं। तो हमने इसमें देखा कि नंबर ऑफ टेंजेंट कितने बन सकते हैं डिफरेंट पॉइंट से। अगर सर्कल के अंदर पॉइंट है, जैसे कि आप यहाँ पे P देख रहे हैं, सर्कल के अंदर है, तो आप कोई भी टेंजेंट नहीं बना सकते हैं। बट इन द सेकंड केस यू कैन मेक ओनली वन टेंजेंट व्हेन पॉइंट ऑन द सर्कल। जैसे कि P पॉइंट कहाँ पे है? सर्कल पे है। बट अगर यही जो पॉइंट P है वो एक्सटीरियर हो जाए आउटसाइड द सर्कल, जैसे कि हमने पहले पढ़ा था इंटीरियर और एक्सटीरियर ऑफ ए सर्कल। सो अगर एक्सटीरियर हो जाए यहाँ पे, तो ये जो P पॉइंट है यहाँ से आप 2 टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। सो यू कैन ड्रॉ 2 टेंजेंट। नाउ नेक्स्ट, सपोज हियर आर 2 सर्कल्स
we have two circles and we want to count the number of tangent. So first figure, in this we have zero common tangent when circle is inside the another circle. Okay, in this case one circle and second circle, but they are not touching or not, no common point they have, so there is no tangent. In second case, two tangent we can draw when the circles cut each other, or we can say intersect at 2 point, then there is possibility that two tangent we can draw. Now in third case, when circle touch internally, so in this case we have one common tangent. In in fourth case, when two circles touch externally at one point, in this case we have three common tangents. Now, so sometimes we have these two circles are also, one more option is there when the circles one is larger and another one is smaller. In this case, this is different case, so I have not shown in this one also possibilities. Next one is segment of a circle. Now let's see what is segment of a circle. A chord of a circle divide a circle region into two parts. कहने का मतलब ये है, एक कॉर्ड जो है वो सर्कल को डिवाइड करता है, सर्कुलर रीजन को दो पार्ट्स में. ईच पार्ट इज कॉल्ड सेगमेंट. तो जब ये कॉर्ड आपको दिख रहा है यहाँ पे जो ए बी, दिस कॉर्ड ए बी इज कॉल्ड chord is a line segment, this line segment AB is called chord, and it divides the circle into two segments. One is called major segment and another one is called minor segment. The green one is minor segment and the white portion is called major segment. Why major? Major mean larger and minor mean smaller. As is clearly we can see that the major, because its area is larger, and this one is minor. And how we have to observe? If the length of the arc is larger, then it is called major segment. If length of the arc is smaller, then it is called minor segment. Next, central angle. So let's see what is central angle. It is an angle whose vertex is center of a circle. So ऐसा एंगल जिसका जो वर्टेक्स है वो कहाँ पर आता है? सेंटर पर आता है. ठीक. With the two radii line, so radii mean this one, जो इसके रेडियाई हैं यानी जो रेडियस हैं, दो रेडियाई कहा जाता है उन्हें. सो रेडियाई ए बी एंड ओ बी वर्क एज ए आर्म, यानी कि उसकी आपको पता है कि जो एंगल बनता है इस तरीके से बनता है, तो एक आर्म ये, एक आर्म ये, तो ये रेडियस यहाँ पे काम करते हैं. तो इस तरीके के जो एंगल सेंटर पे बनता है, यहाँ पे जो एंगल क्रिएट होगा इस वाली जगह पे, इसको बोला जाता है सेंट्रल एंगल. This is called central angle. Joined by the form an arc, central angle is angle subtended by an arc at the center of a circle. तो यानी कि ये जो क्रिएट किया गया है एंगल, वो यहाँ से क्रिएट हुआ है, और एक एंगल इस साइड भी क्रिएट हुआ है, वो मेजर. देखिए, तो दोनों तरफ क्या है? सेंट्रल एंगल है. बट ये मेजर आर्क के लिए सेंट्रल एंगल है और ये माइनर आर्क के लिए सेंट्रल एंगल है. क्लियर? नेक्स्ट, सेक्टर ऑफ ए सर्कल. I hope the sector of a circle, you are already familiar due to the pizza. In case of pizza, such type of part, small piece is called the sector shape. So the sector of a circle is a part of a circle that is enclosed by two radii and an arc of a circle. Sector क्या चीज है कि अगर कोई पोर्शन जो रेडियस और आर्क से कवर हो जाए तो उसे हम क्या बोलते हैं? सेक्टर बोलते हैं. द सेक्टर ऑफ ए सर्कल इज ए पार्ट ऑफ ए सर्कल दैट इज इनक्लोज्ड बाय टू रेडियाई, तो दो रेडियाई से कवर, एंड एन आर्क ऑफ ए सर्कल एज ए पार्ट ऑफ इट्स बाउंड्री, और दूसरी साइड से उसके आर्क लगा होता है. तो इस तरीके से दो तरीके के मेजर सेक्टर क्रिएट होते हैं. दो तरह के सेक्टर क्रिएट होते हैं. वन इज मेजर सेक्टर एंड अदर वन इज माइनर सेक्टर. इन माइनर सेक्टर द आर्क इज स्मॉलर, as you can see, APB, smaller arc, and another one is AQB, larger arc. So larger arc which figure is created by major arc and the radius is called major sector, and minor arc and radius create the figure is called major sector. So thanks, I hope it's clear to you. Now these are the
elements, or you can say the fundamental concepts of circle, and further topics related to this we will discuss in the next lecture. Thank you.